Hi, hello friends, Namaskar. This is Dr. Ashish Shah for Samanvay Briefings. In today's podcast, we will talk about the indicators or indications shown by astrology and the planets uh, and the planetary positions and their movements. So, lot of things are happening or has happened from 18th May and will continue in the next month of June and later on. So as we have seen that from 11th of May there was a ceasefire announcement and later on both the sides have agreed for a pause. Let's not say ceasefire, let's say a pause, right? A strategic pause by both sides and they have agreed to that. So before we move ahead, we have to see that on 14th of May, Jupiter also changed its sign and it moved from Taurus to Gemini, right? When Jupiter moved to Gemini, it aspects the Libra, it aspects Libra through its fifth, what you say, aspect. Okay, Jupiter is good because it aspects the signs which are 5, 7 and 9th from its position. So the fifth sign from Gemini will be Libra, the seventh sign will be Sagittarius and the ninth sign will be Aquarius. So all the air sign, right? So when Jupiter is aspecting this air signs, it means that the air will be cooled off, right? So we have seen that a cease or a pause was announced by the two countries, right? Because Libra also happens to be sixth sign from India's natal chart, which is as a Taurus rising, and if you count the sixth position from Taurus, it is Libra. So Libra for India denotes, it's a very important sign for India, right? It denotes Indian army, it denotes the enemy and a lot many things, right? So when Jupiter was aspecting the sixth sign, it brought a pause between the two warring nations. Okay, that's great, right? Now another important thing that has happened on 18th of May was Rahu Ketu, they have changed their axis, right? We call axis because Rahu and Ketu are opposite to each other. If Rahu is in 1, Ketu will be in 7. If Rahu is in 2, Ketu will be in 8. If Rahu is in 3, Ketu will be in 9. So it forms an axis. So till 18th May, राहु वॉज इन पाइसस और मीन राशि. तो मीन राशि के अपोजिट यदि आप देखें सो इट इज वर्गो, राइट? सो केतु वॉज इन वर्गो. नाउ राहु मूव्ड फ्रॉम पाइसस टू एक्वेरियस. So Ketu will move from Virgo to Leo. Okay, so the new axis formed by Rahu and Ketu is Aquarius and Leo. Clear? Okay. Also note that both Rahu and Ketu, they move in a reverse direction, right? They don't move in a forward direction like other planets. Had it been some other planet, it would have moved from Pisces to Aries, right, forward. But Rahu and Ketu, they move backward. So backward, if one takes one sign backward from Pisces, it is Aquarius. Okay. So Rahu is in Aquarius and Ketu is in Leo. Now what is the significance of this? The Leo is the fourth sign from the Indian natal chart of Taurus. So 2, 3, 4, 5, right? 5 is Leo.
So Leo represents the fourth sign from India's natal chart. Now fourth house represents the citizens of the country or the masses or the motherland, right? So Ketu moving to fourth house of India is not good. Okay, let's be clear on that. And Rahu is moving from 11th house to 10th house, right? A planet like Rahu moving into 10th house is also not good, right? So if you count from India's natal chart, the 10th sign, it is Aquarius. Okay. So Rahu and Ketu has a new axis of Aquarius and Leo, which represents 10th and 4th house of Indian natal chart or independence chart, right? From 1st of June, Venus, which was very well positioned in the sign of Pisces, will also move to Aries. Right, it is going ahead, right? So the next sign from Pisces is Aries. So now Venus will move to Aries, right? And also in the constellation of Ketu, the first constellation, right? So from 0 to 13.2 degrees, you have the nakshatra of Ketu, also called as Ashwin nakshatra, of the sign in the sign of Aries. मेष राशि में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विन नक्षत्र चलता है, जो कि केतु द्वारा रूल्ड है, और वीनस जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो इस साइन में आ जाएगा. आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है. वीनस मूविंग इनटू द साइन ऑफ मार्स, एरीज. एरीज क्या है? पाकिस्तान की रूलिंग साइन है. ओके. एंड जो पहला नक्षत्र है अश्विन नक्षत्र, रूल्ड बाय केतु. केतु रिप्रेजेंट्स व्हाट? केतु रिप्रेजेंट्स इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, extremism, terror. And Ketu becomes more dangerous when it is aspected by Mars. मंगल और केतु की दृष्टि या युति कंजंक्शन होता है, it is a sure sign of big violence, right? तो ये ध्यान में रखिए. 1 जून से शुक्र, that is Venus, will move to Aries in the nakshatra of Ashwin ruled by Ketu, right? अभी तक मंगल, which was in the sign of Cancer, will also move to the sign of Leo when on 6th or 7th of June. You can take 6th June. Okay. So if you see Leo, which is also the fourth sign of India independence in the Indian independence chart, this sign Leo becomes hyper active and sensitive. Why? Because Ketu is moving from 30 degree to 0 degree, while Mars is moving from 0 degree to 30 degree. So Ketu has already come into Leo, but Mars will join it on 6th of June. So Ketu or Mars both will be in the sign Leo from 6th of June, but at a distance of 30 degree. However, as we go ahead, the distance between the two, Ketu and Mars, will keep reducing. तो 30 से 29 होगा, 28 होगा, 27 होगा, 26 होगा, 25 होगा, and at some point they both will get conjunct. So that date is important. In fact, 10 days before that date is important. So this will be somewhere around July. Okay, clear? Also please remember that Venus is also there, right? Venus represents our country India. What else was happening was that as of now Mars is in Cancer,
and Mars is a fiery sign. It's a sign ruled with the element fire, and Cancer is a sign of water. So when Mars is in Cancer, it is weak. It is very weak, क्योंकि फायर जैसी जल में जाएगा वो फायर बुझ जाती है. And that's why this was a very opportune time for India to get inside Pakistan and hit it hard. If you recall, in one of my previous video I have said that anyone, any individual or a country is good for its bravery or whatever till it has the support of planets. See, Maharana Pratap was much braver and has all the positive qualities than, more positive qualities than Akbar. But he didn't have the support of the planets, and that's why he has to see defeat. Right? There are many other such stories. Shivaji, again a great Maratha warrior, और औरंगजेब जो है वो महा बदमाश किस्म का आदमी. पर शिवाजी जो है एक समय तक तो उनको प्लानिटरी का पूरा सपोर्ट रहा, पर उसके बाद वो सपोर्ट हटा. सो ही वॉज प्रेजेंट बाय औरंगजेब. राइट. तो ये इंडिया की थोड़ी सी, या इसे डिवाइन प्ले भी कह सकते हैं, हमारी तकदीर थी. हमारे उसमें लिखा था कि दो वी हैड गुड ब्रेव एंड बोल्ड किंग्स, but still we became slaves of Mughals and later on the English, because the planets didn't favor the kings, our kings of those times. Right? तो अभी जो था, अभी जब तक मार्स कैंसर में है, कर्क राशि में है, इंडिया वॉज हैविंग एन अपर हैंड. लेट्स बी क्लियर ऑन दैट. क्योंकि मार्स विच रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान was weak, and Venus was exalted in its sign Pisces, and as well if you see it was in Libra in the Navamsh. Navamsh, as we have said, that is the ninth part of any sign, right? So Venus, which represents India was much powerful and was able to defend itself against पाकिस्तान. अब 6 मई से जैसे ही मार्स लियो में आ जाता है, एंड लियो इज अ फियरी साइन, फायर साइन है. राइट. देखिए मैं आपको फटाफट गिन के बताता हूँ. एरिस नंबर 1 इज अ फायर साइन, सेकंड इज टॉरस विच इज अ अर्थ साइन, थर्ड इज जेमिनाई विच इज अ एयर साइन, फोर्थ इज कैंसर विच इज अ वाटर साइन. अब ये का ये रिपीट होता है. ठीक है. सो फिफ्थ इज लियो, अगेन अ फायर साइन. Sixth is Virgo, again a earth sign. 7 is Libra, again a air sign. 8th is Scorpio, again a water sign. तो ये 4 की जो ये क्वाड्रपल है ये रिपीट हो रहा है. 9th is again a fire sign. 10th is a earth sign. 11 is a airy sign and 12th is a water sign. राइट. तो 1 से लेकर यदि आप 12 तक सारी राशियों में जाएंगे तो फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, इस क्रम में साइंस का एट्रीब्यूट्स डिफाइन होते हैं. तो लियो जो है, लियो इज अ फायरी साइन, फायर साइन, अग्नि तत्व की राशि है ना. तो जितने भी ये फायर साइन वाले लोग रहते हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्रेव, वेरी बोल्ड. पर क्या है कि उनका जो रूलर है उसके हिसाब से उनकी क्वालिटीज़ भी चेंज होती है. जैसे लियो का रूलर सन है. राइट. तो जो लियो बॉर्न लोग रहते हैं वो ब्रेव रहते हैं, बोल्ड रहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, है ना. पर उनका ईगो भी ज़्यादा रहता है. ठीक है. जो एरीज है विच इज़ द फर्स्ट फायर साइन, इट इज़ रूल्ड बाय मार्स. तो जो फाइटर्स है, जो सोल्जर्स है, दे विल मोस्टली हैव दिस साइन ऑफ एरीज साइन, बिकॉज मार्स रिप्रेजेंट्स वेपन्स एंड सोल्जर्स. राइट. लियो जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की साइन है. मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स विल हैव देयर लियो साइन वेरी प्रोएक्टिव और स्ट्रॉन्ग. एंड द थर्ड फायर साइन इज सेजिटेरस और धनु, विच इज रूल्ड बाय जुपिटर.
तो जुपिटर का काम है एजुकेशन. सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन हाई प्लेसेस इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट और दोज हु आर हैविंग बिग यूनिवर्सिटीज और समथिंग लाइक दैट, दे विल हैव दिस सेजिटेरियस वेरी प्रोमिनेंट अमंग दैम, क्योंकि धर्म की राशि है, एजुकेशन की राशि है, एंड सो इट्स रूल्ड बाय जुपिटर. ठीक है. तो 6 जून से मंगल जो है लियो में आ जाएगा और अपने स्वभाव के अनुसार उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, राइट. और जैसे कि शुक्र जो है वो भी केतु के नक्षत्र में था 0 से 13 डिग्री तक, वैसे ही मार्स जैसे ही एंटर करेगा लियो में, इट विल बी इन द नक्षत्र ऑफ अश्विन रूल्ड बाय केतु. अब सभी नक्षत्र का और जो उनके रूलर है उनका भी उनके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, सो लेट्स नॉट गोइंग टू इट. तो 6 जून के बाद आपका वीनस, मार्स और केतु तीनों लियो में होंगे, जिसमें कि वीनस और मार्स केतु के नक्षत्र में होंगे, दैट इज अश्विन, और केतु इटसेल्फ जो है वो सूर्य के नक्षत्र में होगा. ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे, राइट. हाउ मैं किसी दिन जो है नक्षत्रों का पूरा वो डिफाइन करूँगा कि कैसे नक्षत्र वो होते हैं. 27 नक्षत्र होते हैं, हाउ दे आर. वैसे इन शॉर्ट मैं बता दूँ कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, राइट. तो आप 0 से लेके 360 डिग्री का पूरा जो सर्कल है उसको 13.20 13.20 13.20 में डिवाइड करते जाए तो आपके 27 नक्षत्र हो जाएंगे. ठीक है. 28 नक्षत्र भी माना जाता है, जिसको अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं, वो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. तो 6 जून से जो है थिंग्स बिकम सेंसिटिव. वैसे तो 1 जून से ही बन जाएगा, क्योंकि वीनस जो है दैट इज मूविंग इनटू द नक्षत्र ऑफ मार्स, नॉट नक्षत्र ऑफ मार्स, साइन ऑफ मार्स, बट नक्षत्र ऑफ केतु. तो 1 तारीख से आपका ड्रामा चालू हो जाता है. जो शांति अभी आपको दिख रही है 11 मई से लगभग 31 मई तक, this is a temporary sign, this is a temporary period, and all thanks to PM Modi that he has not declared Operation Sindhu to be closed. It cannot be closed, and he is still taking meetings. So I was watching somewhere, it is said that he has taken 36 meetings with N.S. Doval and 30 meetings with Raksha Mantri Rajnath ji. Okay. So we are into very safe and very good hands, and we must, I am literally saying, ये कांग्रेस की बस की बात भी नहीं, ये कांग्रेस बेच खाती अभी तक. आई एम सॉरी टू ऑल डियर कांग्रेस पीपल एंड ऑल्सो टू द देयर हायरार्की ऑफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी है. ये आपके बस की बात नहीं है, राइट. ये बीजेपी है और नरेंद्र मोदी जी है जो इतना बढ़िया इसको मैनेज कर रहे हैं. ठीक है. However, having said that, things will become challenging from June 1 and more acute from June 6th, and the climax will come around July. इसके बीच में भी घटनाएं होती रहेगी, ऐसा नहीं है. skirmishes will take place. लेकिन जो क्लाइमैक्स की मैं जो बात कर रहा हूँ वो जुलाई और उसके आगे का भी हम देखेंगे कि उसके बाद इन माई नेक्स्ट वीडियो विल टेक द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. बट अभी जो है हम जून और जुलाई पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. ओके. तो ये जो शांति है इसको एंजॉय करिए, एंड थोड़ा सा 1 जून से बी केयरफुल वेदर यू आर गोइंग टू ट्रैवल और वेदर यू आर वॉट एवर, राइट. बिकॉज दिस इज़ अ वेरी, एक जस्ट इन पासिंग लेट मी ऑल्सो टेल दैट कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी रूलिंग साइन जो है वो केतु वो लियो है, और लियो में उनका मंगल बैठा हुआ है. तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी लियो साइन जिसमें नेचुरल बर्थ चार्ट में उनके मंगल लियो में है, और अभी जो है फिर मंगल लियो में आ जाएगा और साथ में केतु भी आ जाएगा, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स as well as President Trump. We'll take another like podcast on President Trump separately. ठीक है. We'll just at the end of this video बस जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ कि जो केतु है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, राइट. केतु इज़ अ सीक्रेटिव प्लैनेट, हम इसे ज्योतिष प्लैनेट ही बोलते हैं. ठीक है. और केतु जो है, जैसे यदि केतु अर्थ साइन में है, राइट,
तो ये रिप्रेजेंट करता है, केतु जो है दिखता नहीं है, इट इज़ बिहाइंड द सीन्स, है ना। केतु जो है वो बिहाइंड द सीन जो है वो है। तो केतु जो है ऑल्सो रिप्रेजेंट द डेड पीपल, ठीक है। जो वही बिहाइंड वाली बात है, जो जिंदा है वो तो सामने है, जो मर गया है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। जो ज़मीन में दिख रहा है वो तो दूसरे प्लैनेट बताते हैं, पर जो ज़मीन के अंदर है वो केतु दिखाता है। तो जब केतु अभी जो है 18 मई से पहले केतु कहाँ पर था? वर्गो में। वर्गो इज अ अर्थ साइन, ठीक है ना। तो अर्थ साइन में जब केतु था तो बहुत सारी टनल्स का काम हुआ, चाहे आप इजराइल में देखें या चाहे आप जम्मू कश्मीर में देखें। अभी जो है पता चल रहा है कि बहुत सारी टनल्स पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई है। अभी हमको और भी पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही केतु इसमें से हटेगा अर्थ में से और लियो में आएगा, यू विल फाइंड दैट लॉट ऑफ दिस टनल्स विच हैव बीन काव्ड बाय पाकिस्तान वो अनर्थ होगी, क्योंकि केतु वहाँ से निकल रहा है। तो उसके जाने के बाद पता चलने लगेगा कि इन्होंने क्या क्या करिश्मा। सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री टू चेक द टनल्स स्पेशली आफ्टर, और वन शुड स्टार्ट ऑलरेडी डूइंग दैट, ओके। तो ये केतु का एक बहुत स्पेशल फीचर है। तो केतु जो है वो लियो में जाएगा। लियो इज व्हाट? फायर साइन, राइट। सो हियर केतु, हाउ केतु विल बिहेव इन अ फायर साइन, दैट विल टेक इन सम अदर पॉडकास्ट, क्योंकि अभी वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया, राइट। सो बी अलर्ट, बी केयरफुल। द टाइम फ्रॉम 1st of June is going to be a bit volatile and tense. ऐसा नहीं है कि इसमें सारी बुराई होगी। जिन लोगों का लियो साइन अच्छा है अपने चार्ट में, या जिन लोगों का मार्स स्ट्रांग है ना, उन लोगों के लिए पीरियड अच्छा भी होगा। लेकिन फिर भी जब केतु और मार्स आपस में मिलेंगे वो सभी के लिए मतलब थोड़ा सा खराब रहता है। बट इट वोंट हार्म इफ इन योर चार्ट मार्स इज प्लेस्ड गुड, क्योंकि वो आपको वो नहीं देगा, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ऐसा नहीं है कि सबके लिए बुरी रहती है, इट डिपेंड्स अपॉन योर नेटल चार्ट। यदि नेटल चार्ट में आपके प्लैनेट अच्छे हैं, स्ट्रांग है, जो साइन इफेक्ट हो रही है वो साइन अच्छी है, तो यू विल बी डूइंग गुड, ठीक है ना। लेकिन यदि आपकी साइन वीक है, प्लैनेट्स वीक है, ठीक है, और जो जिस साइन की हम बात कर रहे हैं वो एफ्लिक्टेड है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो एज ए जनरल वार्निंग आई एम सेइंग दैट जस्ट बी केयरफुल, चेक योर ट्रैवल प्लान्स। मौसम में अचानक चेंजेस हो सकते हैं। मार्स, केतु बोथ रिप्रेजेंट्स आंधी, तूफान, बिजली, लाइटनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, ओके। लियो साइन वैसे ही फायर साइन है, तो जब ये फायर साइन में से जाएंगे या जब आपस में मिलेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ वेदर डिस्टर्बेंसेस, ओके। उधर राहु भी जो है वो भी एक्वेरियस में है। एक्वेरियस है एयर साइन, तो सिमिलर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल बी ऑब्जर्व इन द एयर ऑल्सो, राइट। और मार्स जो है जब लियो में आ जाएगा तो अपनी सामने वाली साइन एक्वेरियस को देखेगा, एक्वेरियस एयर साइन, और वहाँ पे राहु है। सो some incident related to flights, plane can also happen in July, right? क्योंकि मार्स जो है वो सामने देखेगा राहु को एयर साइन में, right? So that may trigger some flash point, okay? So we'll stop here. We'll come up with more videos. So this Dr. Ashisha signing off for Samanvay. Thank you very much. Please like and subscribe to our channel. Unlike other people, we say it in the last. We don't want to take away your time in the beginning, and so we normally start by our proper theme of the day in the beginning. If you watch other videos, they will start पहले वो बोलते हैं कि हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आखिरी तक कोई देखता नहीं है. But we are among the few who say this in the last. So our humble request is, please like and subscribe to our channel. Thank you very much.